Hello friends, in today's video lecture we will be doing an important topic of contract law which is quasi contract. Okay, so quasi contract is given in section 68 to 72 of Indian Contract Act. Okay, so what does quasi contract mean? So contract, actually it is a fictional contract. It is a fictional contract, or it is a contract which is recognized by law. Recognized by law. जनरली जब कॉन्ट्रैक्ट कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए देयर हैज टू बी एन ऑफर, देयर हैज टू बी एन एक्सेप्टेंस, देन देयर हैज टू बी एन agreement which has to be enforceable by court, then it will be a contract. But in quasi contract there is no such agreement and an obligation is imposed by law. So law recognizes it as an contract. So there are certain situations given in section 68 to 72, like five situations: section 68, 69, 70, 71, 72. So these sections will deal with situation in which there is no agreement, there is no offer, no acceptance, but then also law recognizes in such situation that there is an contract and the parties will be liable. Okay, so quasi contract is a contract which is fictional in notion, and it is a contract which is recognized by law. So if we see the definition of quasi contract, it is an obligation of one party. An obligation of one party. Obligations means duty to do something. An obligation of one party to another, imposed by law. It is imposed by law independently of an agreement between them. There is no agreement between the parties. Okay, it is independent of the agreement, based on the prevention of unjust enrichment. कोई अनजस्ट इनरिचमेंट किसी का ना हो, एक इक्विटी के ग्राउंड पे लॉ रिकॉग्नाइज करती है ये ऑब्लिगेशन को. सो द ऑब्लिगेशन of one party to another is imposed by law, which is independent of any agreement between the parties and is based on unjust enrichment, are called quasi contract. ठीक है, so quasi contract are those contract where the obligation is imposed by law, which is independent of any agreement. There is no agreement, and such obligation is imposed because there is an unjust enrichment. So to prevent that unjust enrichment, such obligation is imposed. So now what is unjust enrichment? Unjust enrichment means enrichment or getting benefit to one person at the cost of another. Getting benefit to one person at cost of another. At cost of another. Okay, so this is what unjust enrichment is. Okay, so quasi contract is a contract not in fact but in law. So law recognizes this. It is an implied contract. There are certain situations in which वो सारे situations we will be dealing, where it is implied that there is a contract. Okay, so it is a fictional contract recognized by court. और इसका जो कॉन्सेप्ट था, इट वाज फ्रॉम द रोमन लॉ, एंड इट इज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अनजस्ट इन्रिचमेंट. किसी एक पार्टी को अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है, और किसी एक पार्टी को अगर किसी एक्शन से फायदा हो रहा है किसी और के कॉस्ट पे, देन सच पार्टी शुड रिटर्न दैट बेनिफिट. ओके, because that is an unjust enrichment. That enrichment is not fair. Okay, so quasi contract is based on the principle nemo det locupliteri ex aliena jactura, which means no man should grow rich out of another person's pocket. So ये maxim भी आप लिख सकते हैं. No man, same unjust enrichment, no man should grow rich out of another person's pocket. Okay, so in this case, Fibrosa versus Fairbairn, it was held. Uh, there was a sum paid in advance for the supply of machinery. तो इस केस में क्या हुआ था कि for the supply of machinery there was some money paid in advance.
देन व्हाट हैपेंड, देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ वॉर, जिसकी वजह से वो मशीनरी सप्लाई नहीं हो पाई। तो सिंस यहाँ पे मशीनरी सप्लाई नहीं हो पाई और एडवांस ऑलरेडी पेमेंट हो गया था, देन दी सेलर मस्ट रिटर्न इट बैक टू दी बायर। वाई? बिकॉज अगर सेलर ये बोले कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ और वो पैसे ना दे बिकॉज देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, देन it is not a fair thing. There is an unjust enrichment to the seller because of the outbreak of war since the contract became void. But then also he has to return the money. So simply any civilized system of law is bound to provide remedies. कुछ तो रेमेडीज देना पड़ेगा ना फॉर द केसेस ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। सो क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो भी सिचुएशंस है वो सब अनजस्ट इनरिचमेंट के हैं। सो द लॉ रिकॉग्नाइजेस इट एंड प्रोवाइड द रेमेडी दैट द पर्सन has to return the benefit. Okay. Now, what are the essentials of the unjust enrichment? So, one person has to be enriched by the receipt of a benefit. So, defendant should be enriched by receipt of a benefit. This enrichment is at expense of the plaintiff. किसी के एक्सपेंस पे होना चाहिए। एंड ऐसे enrichment को अपने पास रखना is unjust. It is unfair. Okay. So now what are those situations in which law recognizes that there is a contract? So the first situation is supply of necessaries. In section 68 it is given supply of necessaries to minor or a lunatic, okay, a person incapable of contract, okay. So generally it is necessary supplied to a minor, okay. So, if a person incapable of entering into a contract, which means minor or a lunatic, or anyone whom he is legally bound to support, अगर माइनर का मान लीजिए कोई छोटे भाई बहन है उसको ही इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट, इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन, कोई और व्यक्ति माइनर को नेसेसरीज देता है टू सपोर्ट हिज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और टू सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, तो उसे वो बेसिक नेसेसिटीज लाइफ में जीने के लिए करता है प्रोवाइड। देन द पर्सन हु हैज फर्निश, जिस भी व्यक्ति ने वैसा सामान दिया है, इज इंटाइटल्ड टू रिम्बर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम माइनर को, जब माइनर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड एब इनिशियो होता है, लेकिन अगर हमने माइनर को, जब वो माइनर था उस समय हमने उसे बेसिक नेसेसरी सप्लाई करी, उस पर मेरा खर्चा आया है, ठीक है, उसकी एजुकेशन का खर्चा, उसकी बेसिक नेसेसिटीज मैंने उठाई है, देन व्हेन द माइनर बिकम्स मेजर, then the person is entitled to reimburse it, to get his money, to get his expense back from the property of such minor or lunatic person. Okay. तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि वी कैन नॉट मेक माइनर पर्सनली लाइबल। अगर माइनर के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी से वी कैन रीइंबर्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो माइनर के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड एब इनिशियो बोलता है। बट देन ऑल्सो ये सिचुएशन को हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रिकॉग्नाइज करते हैं, अगर किसी ने उसे नेसेसरी सप्लाई करी है माइनर्स को, then when he becomes major, then he has full right to get his expenses reimbursed from the property of the minor. So whenever the minor will become major, then he can reimburse it from the property of minor. Okay. So this section permits reimbursement for supplying necessaries to the minor. और नेसेसरीज का मतलब ये नहीं कि बेयर नेसेसरीज, इट इज टू द कंडीशंस इन लाइफ, मतलब उसके स्टेटस के हिसाब से, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से जो नेसेसरीज होगी। ऑब्वियसली जो लग्जरी आइटम्स होंगे दैट वोंट बी सपोर्टेड लाइक डायमंड्स, गोल्ड, ये सारे लग्जरी आइटम्स हैं, दैट विल नेवर बी इन द आइटम ऑफ नेसेसरीज। बट हाँ, बेसिक एजुकेशन या जो भी वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वो रह रहा था, सच स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ओके, विल बी necessities. So it depends on the status of a person's standard of living and requirements at the time of actual delivery of goods. Okay. So since minor's agreement is void ab initio, he cannot therefore be asked to pay for the services rendered or goods supplied to him. उसके साथ तो कोई भी, अगर हमने कोई सामान दिया भी तो void ab initio है, but law recognizes a quasi contractual
ऑब्लिगेशन, क्योंकि आपने माइनर को जो भी एक्सपेंस दिए, तो यहाँ पे लॉ आपकी हेल्प कर रहा है. The law is recognizing a quasi contractual obligation for the payment of the necessaries जो भी आपने सप्लाई किया था फ्रॉम देयर स्टेट मतलब उसके प्रॉपर्टी से. आप नो दे कैन बी नो पर्सनल एक्शन अगेंस्ट माइनर, बट यस रीइंबर्समेंट इज परमिटेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर. ओके, अब ये माइनर के ऊपर नहीं है, ही हैज टू पे. द लाइबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द माइनर्स कंसेंट. ये आपको ध्यान रखना है, लाइबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन माइनर्स कंसेंट. उसे अगर इफ ही इज हैविंग द प्रॉपर्टी, he has to reimburse such expenses. Okay, because this is quasi contractual in nature. Okay, so this is all about. So this is done like this section 68 is there to make a fair payment. जिसने भी खर्चा उठाया था, to make the fair payment in respect of the need supply, जो भी necessaries उसने supply की थी. ठीक है, so this was all about the necessaries. Okay, now section 69. So section 69 is payment by an interested person. पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, इसका मतलब क्या है? तो पहले हम लोग सेक्शन को पढ़ लेते हैं. अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे एंड हु देयरफॉर पेज इट इज इंटाइटल्ड टू रीइंबर्स्ड बाय द अदर. तो इसका मतलब क्या है? सेक्शन 69 कह रहा है पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. इसका मतलब क्या है कि अगर किसी एक पर्सन ने किसी और का ड्यू, किसी और का पेमेंट किया है, विच द other person was bound by law to pay, which the other person was bound by law to pay. उसे तो by law पे करना ही था, उसके ऊपर लीगल बाउंडेशन था पे करने की, बट उसने पे नहीं किया था और वो चीज मेरे को अफेक्ट कर रही थी, तो मैंने उसका पेमेंट कर दिया. नाउ सच पर्सन विल हैव टू रीइंबर्स मी. उसे मेरे को जो मैंने उसके लिए पेमेंट किया उसको मेरे को पैसे देने होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी के रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ, उसने बिजली का पैसा नहीं दिया था मकान मालिक ने, तो मैंने वो बिजली का पैसा दे दिया. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल द लैंडलॉर्ड इज बाउंड टू पे, मकान मालिक इज बाउंड बाय लॉ टू पे. तो क्योंकि मैंने पेमेंट दे दी है एंड क्योंकि मैं मकान में रह रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई दिक्कत हो, तो आई एम अ इंटरेस्टेड पर्सन. ओके, तो मैंने पेमेंट की है, देन आई हैव फुल राइट टू गेट रीइंबर्स्ड बाय द लैंडलॉर्ड. लैंडलॉर्ड ये नहीं बोल सकता कि क्यों पेमेंट करी तुमने, है ना, आई वोंट गिव यू मनी, ऐसा लैंडलॉर्ड नहीं बोल सकता. ओके, तो इस सेक्शन के एप्लीकेशन के लिए, सेक्शन 69 के एप्लीकेशन के लिए द फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड सो दैट देयर इज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. तो क्या क्या है? द प्लेंटिफ शुड बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग द पेमेंट. ठीक है, तो फर्स्टली द जिसने भी पेमेंट करी, ही शुड बी एन इंटरेस्टेड पार्टी. उसका कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, इवन दो ही इज नॉट लाइबल, लीगली लाइबल टू पे, बट ही इज एन इंटरेस्टेड पार्टी. जैसे कि मकान मालिक, अगर मैं किसी के रेंटेड हाउस में रहता हूँ, तो मैं एक इंटरेस्टेड पार्टी हूँ कि मैं टेनेंट हूँ, इवन दो द एक्सपेंसेस ऑफ द लैंडलॉर्ड. ओके, द प्लेंटिव हिमसेल्फ शुड नॉट बी बाउंड. अब यहाँ पे जो मेरे एग्जाम्पल में टेनेंट वॉज नॉट बाउंड टू पे, ओके, ही वॉज जस्ट एन इंटरेस्टेड पार्टी. ओके, टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट, कि उसको बार बार जो बिजली डिपार्टमेंट के हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग उसको आके परेशान ना करें. सो टू प्रोटेक्ट हिज ओन इंटरेस्ट, ही वॉज एन इंटरेस्टेड पार्टी, बट ही हिमसेल्फ वॉज नॉट बाउंड टू पे. एंड द डिफेंडेंट, जैसे मेरे एग्जाम्पल में इट वॉज द लैंडलॉर्ड, ही शुड बी अंडर लीगल कंपल्शन टू पे दी मनी. तो बिजली का बिल पे करने के लिए ही इज अंडर द लीगल कंपल्शन. ओके, सो ये सारे कंडीशंस होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए. द पर्सन हैज टू बी द इंटरेस्टेड पार्टी. Okay, he himself should not be bound, but he should only be interested in making the payment so as to protect his own interest, and the defendant should be under a legal compulsion to pay the money. And the plaintiff should have paid the money to another person, like in मेरे example case में it was the electricity board person and not to himself. खुद ही को वो नहीं कर देगा payment. ठीक है, so what does it mean? Section 69, what is it saying? अगर हम इसमें एग्जाम्पल लें, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं. सबसे पहला तो
फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था कि अगर टेनेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या म्यूनिसिपल टैक्सेस ही हैज टू पे, द लैंडलॉर्ड हैज टू पे, बट उसने अगर पे नहीं किया और टेनेंट ने पे किया है, देन द टेनेंट कैन रीइंबर्स द मनी फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। अब मान लीजिए एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने मैंने लाइक देयर वाज अ पर्सन जिसने एक घर खरीदा, सेलर ने घर बेच दिया, अपना घर बेच दिया। नेक्स्ट डे क्या होता है, अमेजन से एक फ्रिज का डिलीवरी ऑर्डर आता है जो कि सेलर ने बाय लिया था। वो शायद भूल गया होगा कि मैं उसने ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने देखा कि डिलीवरी आया है, तो इसने पेमेंट दे दिया और फ्रिज रख लिया। बाद में वो सेलर को फ़ोन करता है कि अपने मकान मालिक को कि देखिए आपका फ्रिज आया हुआ है, मैंने पैसा दे दिया है, तो आप अपना फ्रिज ले जाइए और मेरे को पैसे दे दीजिए। सो इन दिस केस द लैंडलॉर्ड कैन से कि मैंने बोला था पैसे देने के लिए, है ना? सो ही इज द लैंडलॉर्ड इज नॉट लायबल टू गिव द मनी। अब उस अगर उसने फ्रिज रख लिया है तो अब द बायर कैन टेक द फ्रिज। जो टेनेंट है जिसने घर खरीदा है वो फ्रिज अपने पास ही रखे। अगर लैंडलॉर्ड रिफ्यूज कर रहा है दैट ही डोंट वांट द फ्रिज एंड ही वोंट मेक द पेमेंट, देन द बायर ऑफ द हाउस कैन नॉट फोर्स हिम टू डू। क्यों? बिकॉज इन दिस केस the person was not interested party, okay, and the the seller of the house was not bound by law to pay। हो सकता है वो बाद में फ्रिज का पैसा देते ही नहीं, कोई अमेजन वाले उस पर इंक्वायरी थोड़ा ना बैठाते। सो ही वॉज नॉट बाउंड बाय लॉ टू पे एंड नीदर द buyer of the house was an interested party, है ना? So in this case, section 69 won't apply. Okay, why it won't apply? Because the seller was not under a legal compulsion to pay the money. Electricity bill के case में he was, the landlord was was at the legal compulsion to pay the money, but not in this case. Okay, so this was all about section 69. Now we will see section 70. Okay, so section 70 is liability to pay for a non-gratuitous act. Non-gratuitous act. Non-gratuitous act मतलब an act which is not done for a charity. Okay, for which a payment is expected. So section 70 is all about this. So section 70 of the contract act states where a person lawfully, कोई भी आदमी if lawfully does anything for someone else, okay, and he's not intending to do so it gratuitously, वो gratuitously नहीं intend कर रहा है, he is expecting a payment, और जो second person है he enjoys the benefit of the act, then the latter is bound to make compensation to the former इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग डन फॉर हिम और डिलीवर्ड टू हिम। तो इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया और मैं ग्रेचुअसली नहीं कर रहा हूँ, चैरिटी के लिए नहीं कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग द पेमेंट, बट मैंने उससे पूछा नहीं है एंड द पर्सन इज इंजॉइंग द बेनिफिट ऑल्सो, सिंस ही इंजॉयड द बेनिफिट नाउ ही इज लाइबल टू पे। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप सीपी में आप घूम रहे हैं, कनॉट प्लेस में आप एक चेयर पे बैठे हुए हैं, एक कॉबलर आता है, वो आपके जूते साफ करने लग जाता है। अ कॉबलर कम्स और वो आपके जूते साफ करने लग जाता है, और आप कुछ बोल नहीं रहे, अपना जूता साफ भी करा रहे हैं, आराम से साफ करा रहे हैं। उसके बाद जब उसने जूता साफ कर लिया आपका, तब आप बोल रहे हैं कि मैंने तो बोला ही नहीं था साफ करने के लिए, क्यों साफ किया तुमने? आई वोंट गिव द पेमेंट। तो यहाँ पे आप यू कांट डू सो, वाई? बिकॉज द कॉबलर इवन दो ही डिडंट आस्क यू, बट ही डिड समथिंग फॉर यू एंड ही डिडंट डू इट ग्रेचुअसली। उसने ग्रेचुअसली नहीं किया था, मतलब चैरिटी के लिए नहीं किया था, ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ पेमेंट। ओके, एंड यू इंजॉयड द बेनिफिट। आप चाहते तो मना भी तो कर सकते थे, बट यू इंजॉयड द पेमेंट। So since you enjoyed the polishing of the shoes, now you have to make the payment. Okay, so this is all about section 70. So section 70 के लिए जो conditions हैं वो क्या है? A person should lawfully do something for another. That doing of something should be lawful. Okay, जैसे यहाँ पे कॉबलर का शू पॉलिश करना, it was a lawful act.
ही मस्ट नॉट इंटेंड टू एक्ट ग्रेचुअसली, कोई चैरिटी के लिए उसको नहीं करना, he is expecting a payment, and the other person must have enjoyed the benefit, then section 70 will apply. Okay, that if the goods or services are accepted, then a liability to pay arises. Okay, so यहाँ पे क्या है, he there must be a choice to reject the service. Cobbler वाले केस में the person was having the choice to reject the service. Okay, so since the person was having the choice to reject this service, so then later on he cannot say that I won't make the payment. Then he is bound to make the payment since he had the choice to reject it at the first place. Any act or service should have been done without the request. Okay, so this is all about section 70. अब section 70 जो है, it also applies to the government authorities. So there was a case, state of West Bengal versus BK Mondal. Okay, so this is an important case. So यहाँ पे क्या था, एक आदमी ने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क किया था एट द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द स्टेट. गवर्नमेंट का एक ऑफिसर आया था, उसने बोला था कि गवर्नमेंट चाहती है कॉन्ट्रैक्ट या गवर्नमेंट के बिहाफ पे कि क्या नाम है, देयर शुड बी अ कंस्ट्रक्शन. ठीक है, सो स्टेट ने कंस्ट्रक्शन, तो जो ऑफिस के डिपार्टमेंट ने वो कंस्ट्रक्शन तो एक्सेप्ट कर लिया, बट उन्होंने ये बोला कि आर्टिकल 299 में there is a procedure for the contract with the government, and that procedure was not followed. Since the contract is not valid, so we will not make the payment. So the court said that since you enjoyed the construction work, you enjoyed the efforts, you enjoyed the service of the plaintiff, now you have to pay. You have to pay for uh, for the construction work, even though the contract is not valid, but there is a quasi contractual liability. ठीक है, so liability to pay for non gratuitous acts. So section 70 will apply even though the contract was not valid, but there was a quasi contractual liability. ठीक है, गवर्नमेंट ने तो कहा था क्योंकि आर्टिकल 299 में जो वो शीट्स होने चाहिए उसमें प्रेसिडेंट का साइन होना चाहिए, गवर्नमेंट का एम्बलम होना चाहिए, देन ओनली द स्टेट विल बी लाइबल, तभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी लाइबल. बट वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो था, ऑफिसर ने किया था, बट वो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोसीजर पूरे वैलिड नहीं थे. ठीक है, तो इट वाज नॉट अ वैलिड प्रोसीजर, सो इट वाज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओके, बट द कोर्ट सेट हियर even though the contract is not valid, but section 70 will apply, and the liability is of quasi contractual liability. Okay, so this was held. So now section 71, finder of lost goods. अभी तक हमारे सेक्शन 68, 69, 70 थ्री सिचुएशंस हो चुके हैं जिसमें क्वासाई कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है, जहां पे इवन दो कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं था, बट द circumstances के क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट है and the person will be liable to pay. Okay, so the finder of lost goods. Section 71. Section 71 of the Contract Act states a person who finds the goods belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as that of bailey. तो इसका मतलब क्या है, अगर आप कहीं रोड पे जा रहे हैं और आपको किसी का कोई सामान मिल जाए, तो क्या वो सामान खुद रख लेंगे? है ना? तो जो रूल क्या है, रूल ये है कि जब भी वो ओनर आएगा, देन यू कैन गिव दैट lost good to him. Okay, but till the time he is not coming, so you are entered into a contract with that owner that whenever such owner will come, you will return back the good. So law will recognize this thing. और अगर उस गुड को सेफ रखने के लिए कोई एक्सपेंस हुआ है, देन यू कैन ऑल्सो रिकवर दैट एक्सपेंस फ्रॉम द ओनर. सो टिल द टाइम द ओनर इज फाउंड, ओनर जब तक मिलता है तब तक यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज दैट ऑफ बेली. तो बेली की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सो बेली हैज टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस विल टेक केयर ऑफ हिज ओन गुड्स. जैसे वो अपने सामान को रखेगा,
वैसे ही बेली को उसका भी सामान रखना है। ओके, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, मतलब खराब हो जाएंगे, देन द फाइंडर ऑफ गुड्स कैन डिस्पोज द गुड, कैन सेल द गुड्स आफ्टर टेकिंग रीजनेबल मेजर्स, और जब भी ओनर आएगा देन ही कैन रिटर्न दी मनी टू सच पर्सन। बट अगर वो पेरिशेबल नेचर के नहीं है तो उसे गुड्स एज इट इज रखना पड़ेगा, ही कैन नॉट डिस्पोज इट ऑफ। तो अगर आपको सोने का कोई सामान मिल गया या डायमंड के को कोई रिंग मिल गई, सो यू कांट सेल इट, you have to keep it as a PLE. Whenever the owner will come, you have to give it. Okay, so your status is not of a owner. अगर आप owner होते then only you could have sell it. Okay, mistake or coercion. So section 72, this is the last part. So it says that अगर किसी a person to whom money has been paid or anything delivered by mistake or under a coercion must repay it. तो ये सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए अ, अ, कोई मेरे को कोई ए को बी समझ के कुछ पैसे दे देता है और बी उसको रख लेता है बाय मिस्टेक, वो ए को बी समझ के पैसे दे देता है कि मेरे को आपको पैसे देने थे, देन सच पर्सन इज बाउंड टू रिटर्न दैट मनी टू बी, जो इसका एक्चुअल रेसिपिएंट था। ठीक है, so the payment by mistake refers to payment which was not legally due and which could not have been enforced. The mistake is thinking that the money paid was due when in fact it was not due. ठीक है, so it is basically the doctrine of unjust enrichment. ओके, मान लीजिए ए और बी ने जॉइंटली 100 रुपए दिए थे सी को। ठीक है, अब ए एंड बी जॉइंटली जो है 100 रुपए सी को दिए थे उसने, ए अलोन या फिर ए एंड बी जॉइंटली सी से 100 रुपए लिए थे। अब ए ने जो है 100 रुपए सी को पूरे के पूरे रिटर्न कर दिए। ठीक है, नाउ बी इज बाउंड टू पे ए द हाफ ऑफ द मनी। ओके, सो सेक्शन 72 इज बेसिकली द डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। अगर गलती से आपको किसी ने पैसे दे दिए हैं या कोई सामान दे दिया है, देन यू हैव टू रिटर्न दैट मनी। ओके, अब जैसे कि एक और केस था सेल्स टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैया लाल सरफ। ओके, इन दैट केस व्हाट रियली हैपेंड वाज कि यूपी सेल्स टैक्स लॉ के हिसाब से कुछ टैक्सेस सेल्स टैक्स के बनते थे, तो द पर्सन gave the tax, but later on it was declared that such tax is ultra vires, then the firm can take the tax money back, okay, from the authorities. Why? Because they gave the tax on the mistake that they are liable to give it, but in fact such taxes were ultra vires and they were not liable to give it. Okay, so in this case, in sales tax officer versus Kanhaiya Lal, the court said that the tax authorities have to refund the money. Okay, the court said the tax authorities have to refund the money. Okay, so this was sales tax officer versus Kanhaiya Lal. Okay, similarly there was a case S केतरब्बा सप्पा वर्सेस इंडियन बैंक। इसमें एक पर्सन के बैंक अकाउंट में, इन दिस केस एक पर्सन के बैंक अकाउंट में मिस्टेक से 1 लाख रुपए ऐड हो गए थे एंड द पर्सन विड्रॉ इट। वो पैसा निकाल के खर्च करने लग गया क्योंकि उसके देखा उसके अकाउंट पे अचानक से क्रेडिट हो गया 1 लाख रुपए। ओके, देन द अमाउंट, so since it was done by mistake, so the person has to give back 1 lakh rupees to the bank. Okay, now in this case you must remember that because of mistake the person should get some loss. Okay, मफतलाल इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे इस वाले केस में क्या हुआ था, जैसे कि सेल्स टैक्स वाला जो मैंने केस बताया था उसमें सेल्स टैक्स के मिस्टेक की वजह से द पर्सन वर नॉट लाइबल टू पे बट दे पेड, सो दे गॉट इट बैक। बट इस केस में भी सेम था, देर वॉज सम इनडायरेक्ट टैक्स विच दे वर नॉट लाइबल टू पे बट दे पेड, बट दे शिफ्टेड द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द थर्ड पार्टी। उन्होंने पे तो किया बट अपने पैसे से नहीं, थर्ड पार्टी के पैसे से। ओके, उन्होंने बिल में ही ऐड कर दिया वो टैक्स का पैसा, सो थर्ड पार्टी को पे करना पड़ा।
Then it was held by the court that since they have not paid it from their own pocket, the tax burden was shifted. Therefore, Section 72 won't apply since they were not at any loss. ओके, सो इसीलिए ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी फाइंडिंग्स थोड़ी सी अलग रही. ओके, दिस केस नेम इज Mafatlal Industries versus Union of India. So this was all about the quasi contract. So in quasi contract, what we saw is that firstly, quasi contract is an obligation which is imposed by law. It is fictional in nature. It is independent of agreement, and is based on prevention of unjust enrichment. Okay, so it is contract not in fact but in law to prevent some unjust enrichment. Okay, so what are those situations? So those situations are प्रोवाइडिंग नेसेसरीज टू अ माइनर. ठीक है, तो यहाँ पे माइनर साथ तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, बट इफ अ पर्सन हैज प्रोवाइड द नेसेसरीज टू अ माइनर, देन there is an unjust enrichment to the minor. So the person is having right to recover or to get reimbursed from the property of such minor. Property of such minor. वो minor को personally liable नहीं कर सकता because law will always act as a guardian of the minor. But if somebody else's have got some losses, then equity will come in play and such person can be reimbursed from the property of minor क्योंकि that person supplied necessaries to the minor. So there is an unjust enrichment to the minor. Okay. The second case was payment by an interested person. Okay, so in this case, the person should be interested. The person should not be bound by law to pay it. ठीक है, he should only be an interested party, and the defendant, जो next party है, that person should be bound by law to pay it. Okay, तो इसमें हमने वो टेनेंट और लैंडलॉर्ड वाला केस देखा था. सो इन दैट केस एक केस और है इसमें. A party agreed to purchase certain mills. Okay, then they were allowed to recover from the seller the amount of already overdue municipal taxes paid by them. तो उन्होंने मिल तो खरीदा बट उसमें में म्यूनिसिपल टैक्सेस बचे हुए थे जो कि उस मिल के ओनर ने पे नहीं किए थे. सो दे हैड टू पे इट. सो नाउ दे कैन रिकवर such municipal tax money from the owner. So this case will be under payment by interested person. Section 69 will apply. Then liability to pay for non-gratuitous act. If somebody has done some act and for which the person is expecting a payment and you have enjoyed the benefit of such act, then the person is liable to pay since you have enjoyed the benefit of the act. Okay, this is done. Then finder of lost good. So the person has to wait for the owner to come, and till that time he is not the owner of the good, he is just a bailee of the good. Okay. एंड मिस्टेक ऑन मिस्टेक, अगर कोई पैसा आपको बाय मिस्टेक कोई दे जा रहा है, कोई और समझ के, मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी या कोई भी मिस्टेक की वजह से, देन देर इज एन अनजस्ट इन्वेस्टमेंट एंड यू हैव टू रिटर्न दी मनी. ओके, सो ये 5 केसेस है जहां पे कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है, बट बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस, अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड में कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है, बट द पर्सन इज नाउ इन एन एग्रीमेंट ऑफ अ बेली, नाउ ही इज टेकिंग केयर ऑफ द गुड. ओके, या ग्रेचुइटस एक्ट में भी कोई उसने वहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं था, उसने पूछा नहीं था कि वेदर यू विल वांट टू गेट योर शूज पॉलिश्ड और नॉट, बट सिंस द पर्सन enjoyed the service, now he has to make the payment. So this was all about quasi contract, which is covered under section 68 to 72 of contract act. So this was all about quasi contracts. Thank you all.